Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss plant community and qualitative characteristics of plant community. Concepts of plant community. The populations of different species living in same habitat are called community. According to Austin in 1956, plant community is an aggregation of individuals with mutual relationships among themselves and to their environments. Thus, community has two parts. First is mutual relationship among individuals. Second is mutual relationship with the environment. मुख्तलिफ स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस जो सेम हैबिटेट में रहती हैं कम्युनिटी कहलाती है। ओस्टिंग ने 1956 में प्लांट कम्युनिटी के बारे में बताया। उसके मुताबिक प्लांट कम्युनिटी ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो कि आपस में और अपने माहौल के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं। कम्युनिटी के दो पार्ट्स हैं। नंबर एक, इंडिविजुअल्स के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप। नंबर दो, इन्वायरमेंट के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप। Mutual relationship among individuals. It includes all the direct or indirect effects of the organisms on each other. Competition is the most important effect. A forest is composed of different kinds of plants. It has huge trees, large shrubs, small shrubs, and ground flora, etc. Survival of lower layer of plants depends upon the shade of trees above them. The huge trees provide adaptations for the growth. इंडिविजुअल्स के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप में जानदारों के एक दूसरे पर तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स शामिल हैं। कंपटीशन सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है। फॉरेस्ट में मुख्तलिफ अक़साम के प्लांट्स पाए जाते हैं। इनमें बड़े दरख्त, बड़ी श्रब्स, छोटी श्रब्स और ग्राउंड फ्लोरा शामिल हैं। प्लांट्स की लोअर लेयर का सर्वाइवल इनके ऊपर ट्रीज़ के शेड पर डिपेंड करता है। बड़े दरख्त ग्रोथ की एडाप्टेशंस प्रोवाइड करते हैं। Fungi and bacteria are also a part of community. They also play an important role. These fungi and bacteria may be parasitic or saprophytic. They cause many diseases. Some of these diseases become much serious. These diseases can destroy whole community. There are certain symbiotic bacteria. They form small nodules on the roots of leguminous plants. फंजाई और बैक्टीरिया भी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया पैरासाइटिक या सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं। इनमें से कुछ बीमारियां बहुत सीरियस हो जाती हैं। ये बीमारियां मुकम्मल कम्युनिटी को तबाह कर सकती हैं। कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पर स्मॉल नोड्यूल्स बनाते हैं। These nitrogen-fixing bacteria take free nitrogen from the air and combine it with other elements. They form nitrogenous compounds for the plants. The nitrogenous compounds of the plants are released in the soil. They are used by other plants. ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ़िज़ा से फ्री नाइट्रोजन हासिल करते हैं और उसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर देते हैं। ये प्लांट्स के लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाते हैं। प्लांट्स के नाइट्रोजनस कंपाउंड्स सॉइल में रिलीज़ होते हैं जिसे दूसरे प्लांट्स यूज़ करते हैं। Mutual relationship with the environment. The plants adapt themselves in their habitat. Some plants can withstand heat or cold. Some plants require a large continuous supply of moisture.
but some other plants require only a small amount of moisture. Thus, the climate of a region controls the kind of plants. The complex of climatic factors determines the general vegetation types like grassland or forest. Thus, climate of a region can be evaluated by observing the vegetation. माहौल के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्लांट्स माहौल के मुताबिक अडाप्ट कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स हीट या कोल्ड को बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स को मुसलसल काफ़ी मिकदार में मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ को कम मिकदार में मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। इस तरह से रीजन की क्लाइमेट पौधों की अक़साम को कंट्रोल करती है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की कम्प्लेक्सिटी जनरल वेजिटेशन जैसा कि ग्रासलैंड या फॉरेस्ट के बारे में बताती है। इस तरह से रीजन की वेजिटेशन से उसकी क्लाइमेट का पता चल जाता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी। The attributes of plant community are classified into three main groups. First, analytic characteristics. Second, synthetic characteristics. Third, physiognomic characteristics. प्लांट कम्युनिटी की खसूसियात को तीन मेन ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 एनालिटिक करेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 सिंथेटिक करेक्टरिस्टिक्स और नंबर 3 फिजियोग्नोमिक करेक्टरिस्टिक्स। Analytic characteristics. The characteristics which can be analyzed by quantitative or qualitative methods are called analytic characteristics. They may be of two types. First, qualitative characteristics. Second, quantitative characteristics. ऐसी characteristics जिन्हें quantitative और qualitative methods के ज़रिए से एनालाइज किया जा सके एनालिटिक करेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। ये दो तरह की हो सकती हैं। नंबर 1 क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। Qualitative characteristics, the disruptive characteristics which cannot be measured, are called qualitative characteristics. These include following characteristics. First, kind of species or floristic composition. Second, stratification. Third, periodicity. 4, vitality. 5, sociability. 6, life forms. And 7, एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज़। ऐसी करैक्टरिस्टिक्स जिन्हें मेजर ना किया जा सके क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। इनमें मदरजा झैल करैक्टरिस्टिक्स शामिल हैं। नंबर 1 स्पीशीज़ की अक़साम या फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रैटिफिकेशन, नंबर 3 पीरियडिसिटी, नंबर 4 वाइटैलिटी, नंबर 5 सोशिएबिलिटी, नंबर 6 लाइफ फॉर्म्स और नंबर 7 स्पीशीज़ की एसोसिएशन। Floristic composition. In each community there is a characteristic set of plant species which is known as floristic composition or species composition of the community. While studying a plant community, a complete list of all plant species is appeared, which is called as floristic list. Floristic lists are valuable in assigning the conditions of the habitat because each species has its own range of ecological amplitude. The community is named after a single dominant or abundant species. हर एक कम्युनिटी में मखसूस प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं जिसे फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन या कम्युनिटी की स्पीशीज़ कंपोजिशन कहते हैं। जब प्लांट कम्युनिटी को स्टडी करते हैं तब तमाम प्लांट स्पीशीज़ की एक लिस्ट आती है जिसे फ्लोरिस्टिक लिस्ट कहते हैं। फ्लोरिस्टिक लिस्ट्स हैबिटेट की कंडीशंस को बताने के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हैं क्योंकि हर एक स्पीशीज़ की एक मखसूस इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड की रेंज होती है। कम्युनिटी का नाम डोमिनेंट स्पीशीज़
या ज़्यादा पाए जाने वाली स्पीशीज के नाम पर होता है। Stratification, it is the occurrence of organisms or their parts at different levels, vertical, horizontal, alternate in a stand. It is further subdivided into layering, zonation and alternation. एक स्टैंड में मुख्तलिफ लेवल्स पर ऑर्गेनिजम्स या इनके पार्ट्स की अक्रेंस स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। इसको मज़ीद तकसीम किया जाता है। नंबर 1 लेयरिंग, नंबर 2 जोनेशन एंड नंबर 3 अल्टरनेशन। Layering. Forest or woodland communities show layers or vertical zones of plants distinguished by their statures. The tallest species from tree canopy dominates the lower layers. Some trees may emerge above the tree canopy and are called emergent. In some thick forests, tree canopy may be having further layers according to height of trees. Beneath the tree canopy, a shrub layer is present. In most woodland, a field layer exists below the shrub layer. It comprises of herbs and shrubs. Field layer may cover ground layer of mosses and creeping herbs. All layers may not be present in all woodlands. One or more layers may be missing. फॉरेस्ट या वुडलैंड कम्युनिटीज़ में प्लांट्स की लेयर्स या वर्टिकल जोन्स नज़र आते हैं जिन्हें स्टेचर्स के मुताबिक डिस्टिंग्विश किया जाता है। ट्री कैनोपी में टालेस्ट स्पीशीज़ पाई जाती है और ये लोअर लेयर्स पर डोमिनेट करती है। कुछ ऐसे ट्रीज भी होते हैं जो कि ट्री कैनोपी से ऊपर होते हैं, उन्हें इमर्जेंट कहते हैं। कुछ थिक फॉरेस्ट्स में ट्री की हाइट के मुताबिक मज़ीद लेयर्स हो सकती हैं। ट्री कैनोपी से नीचे श्रब लेयर पाई जाती है। बहुत से वुडलैंड्स में श्रब लेयर के नीचे फील्ड लेयर पाई जाती है जो कि हर्ब्स और श्रब्स पर मुश्तमिल होती है। फील्ड लेयर मॉसेस और क्रीपिंग हर्ब्स की ग्राउंड लेयर को कवर करती है। तमाम लेयर्स तमाम वुडलैंड्स में नहीं हो सकती। इनमें से एक या एक से ज़्यादा लेयर्स मिस हो सकती हैं। Zonation. Vegetation sometimes shows the formation of definite horizontal zones. In a forest, for example, trees are surrounded by a zone of shrubs and shrubs by that of grasses. In a pond community, floating species of deep water are surrounded by marsh vegetation, which in turn is surrounded by sedges and grasses. बाज़ात वेजिटेशन मखसूस हॉरिजेंटल जोन बनाती है। मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट में ट्रीज़ को श्रब्स और श्रब्स को ग्रासेस ने घेरा होता है। पॉन्ड कम्युनिटी में डीप वाटर की फ्लोटिंग स्पीशीज़ को मार्श वेजिटेशन और मार्श वेजिटेशन को सेजेस और ग्रासेस ने घेरा होता है। Alternation. Zonation is sometimes disturbed or remains incomplete by abrupt changes in the environment. Such disturbed zones are called alterns. Parallel mountain ridges may have one types of vegetation on one slope and another types on other because of different conditions of climate on the two slopes, thus showing alternation. बाज़ात जोनेशन डिस्टर्ब हो जाती है और माहौल में अचानक तब्दीलियों की वजह से इनकम्प्लीट रहती है। ऐसे डिस्टर्ब जोन को अल्टर्न्स कहते हैं। पैरेलल माउंटेन रिजेस पर मुख्तलिफ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से एक स्लोप पर एक किस्म की वेजिटेशन जबकि दूसरी स्लोप पर दूसरी किस्म की वेजिटेशन पाई जाती है जो कि अल्टरनेशन शो करती है।
Periodicity. The rhythmic phenomena related to seasonal changes is called periodicity. These seasonal changes are growth, flowering, pollination, ripening of fruits and seeds. Periodicity is controlled by different environmental factors like light, temperature, etc. सीजनल चेंजेस से रिलेटेड रिदमिक फिनोमेना पीरियडिसिटी कहलाता है। इन सीजनल चेंजेस में ग्रोथ, फ्लावरिंग, पोलिनेशन और फ्रूट्स और सीड्स की राइपनिंग शामिल है। पीरियडिसिटी मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसा कि लाइट, टेम्परेचर वगैरह से कंट्रोल होती है। Vitality. The capacity of plants to complete their life cycles is called vitality. It depends on the vigor or state of health at different developmental stages of the community. Vitality of community is based on vitality of plants. Plants are classified regarding vitality into groups like well-developed plants, vigorous plants, feeble plants, and एफीमेरल प्लांट्स। प्लांट्स की अपनी लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट करने की सलाहियत वाइटैलिटी कहलाती है। ये कम्युनिटी की मुख्तलिफ डिवेलपमेंटल स्टेजेस की विगर या हेल्थ स्टेट पर डिपेंड करती है। कम्युनिटी की वाइटैलिटी प्लांट की वाइटैलिटी पर डिपेंड करती है। प्लांट्स को वाइटैलिटी की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स जैसा कि वेल डेवलप्ड प्लांट्स, विगरस प्लांट्स, फीबल प्लांट्स और एफीमेरल प्लांट्स में तकसीम किया जाता है। लाइफ फॉर्म. The general appearance of plant body is referred as its life form. It is studied under three heads: first, vegetative form; second, habitat form; and third, growth form. प्लांट बॉडी की जनरल अपीयरेंस को उसकी लाइफ फॉर्म कहते हैं। इसको तीन तरह से स्टडी किया जाता है। नंबर 1 वेजिटेटिव फॉर्म, नंबर 2 हैबिटेट फॉर्म और नंबर 3 ग्रोथ फॉर्म। वेजिटेटिव फॉर्म. इट इज़ द वेजिटेटिव अपीयरेंस सच एज साइज, शेप, histology and longevity of the body. A certain plant community has a particular set of life forms. The life form of species depends on its genetic structure as well as environmental conditions. Life form determines the general appearance of a community more than other character. वेजिटेटिव फॉर्म प्लांट बॉडी की वेजिटेटिव अपीयरेंस जैसा कि साइज, शेप, हिस्टोलॉजी और ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताती है। मखसूस प्लांट कम्युनिटी में मखसूस लाइफ फॉर्म्स का सेट होता है। स्पीशीज़ की लाइफ फॉर्म इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। लाइफ फॉर्म दूसरे करैक्टर के अलावा कम्युनिटी की जनरल अपीयरेंस का बताती है। हैबिटेट फॉर्म. प्लांट स्पीशीज इंडिकेट द environmental conditions of the habitat. There are three classes of habitat for plants. First, hydrophytes, which live partially or wholly in water. Second, mesophytes, which live in moderate moisture conditions. Third, xerophytes, which can endure drought to different degrees. प्लांट स्पीशीज़ माहौल की इन्वायरमेंटल कंडीशंस का बताती हैं। हैबिटेट के लिहाज से तीन क्लासेस हैं जैसा कि हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पार्शली या मुकम्मल तौर पर पानी में रहते हैं। मीज़ोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मॉडरेट मॉइस्चर कंडीशंस में रहते हैं, जबकि ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की ड्राउट को टॉलरेट या बर्दाश्त कर सकते हैं। ग्रोथ फॉर्म. Some species of plants develop differently under different environmental conditions within a community. Such species are called growth forms. In a leftover field, the growth form of Salsola is 2 feet in height.
but in a nearby grassland where it has to compete with perennial grasses, its growth forms may be hardly an inch or 2 inches in height. कुछ प्लांट स्पीशीज मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस में मुख्तलिफ तरह से डिवेलप होती हैं। इन स्पीशीज को ग्रोथ फॉर्म्स कहते हैं। एक अनवाटेड फील्ड में सलसोला की हाइट 2 फीट तक होती है, जबकि ग्रासलैंड में जहां इसका पेरेनियल ग्रासेस के साथ कंपटीशन होता है, इसकी ग्रोथ फॉर्म 1 इंच या 2 इंच तक हो सकती है। Sociability: The degree of aggregation of plants in nature is called sociability. Sociability depends on life form, mode of reproduction, habitat condition, and competition. Plants that propagate by rhizome, runner, or root tend to aggregate. Species reproducing by seeds are less social. Those seed-bearing species which are efficient means that seeds and fruit dispersal are less social. नेचर में प्लांट्स की इकट्ठा होने की सलाहियत सोशिएबिलिटी कहलाती है। सोशिएबिलिटी लाइफ फॉर्म, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिटेट कंडीशन और कंपटीशन पर डिपेंड करती है। वो प्लांट्स जो कि राइजोम, रनर या रूट्स के ज़रिए से प्रोपेगेट करती हैं, वो इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसी स्पीशीज़ जो कि सीड्स के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करती हैं, लेस सोशल होती हैं। सीड प्रोड्यूस करने वाली स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। इसका मतलब ये है कि सीड्स और फ्रूट डिस्पर्सल लेस सोशल बना देते हैं। Association of species: Some species tend to live together in the same community. The possible reasons for their association are: first, similarity in their ecological amplitude; second, difference in life form; third, similarity in geographic ranges; fourth, dependence of one species on the other for shade, shelter, or food; fifth, dependence of one species on other species for protection against grazing. कुछ स्पीशीज एक कम्युनिटी में इकट्ठे रहने की कोशिश करती हैं। इनकी एसोसिएशन की मुमकिन रीजंस ये हो सकती हैं: नंबर 1, इनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड सिमिलर होता है। नंबर 2, इनकी लाइफ फॉर्म्स मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर गहरी और कम गहरी रूट्स की वजह से कंपटीशन कम हो जाता है। नंबर 3, इनकी जियोग्राफिक रेंजेस सिमिलर होती हैं। नंबर 4, एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ पर शेड, शेल्टर या फूड के लिए डिपेंड करती है। नंबर 5, एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ पर ग्रेजिंग से प्रोटेक्शन के लिए डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।